3.5 سال کا عرصہ ہم نے بھی یہاں حکومت کی، زیادہ تر ہمارے کولیگز ہیں، منسٹرز ہیں، پورٹ فولیوز میں ضرور چیزیں آگے پیچھے گئی ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ پوری ہماری کوشش ہوگی کہ بلوچستان کے بڑے مفاد میں چیزوں کو آگے لے جایا جائے، اور ہماری ہر لحاظ سے کوشش بھی رہے گی کہ یہ جو تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہے، یہی کولیشن گورنمنٹ ایک اچھے انداز میں چیزوں کو آگے لے جائے، ترقی کا عمل اسی طرح جاری رہے، اچھی چیزیں آ سکتی ہیں، ہم اس کو بالکل ویلکم کہیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ کنٹینیوشن آف دا پالیسیز رہیں، گورنمنٹس آتی جاتی رہتی ہیں، ہم نے ایک پالیسی بنائی، ہماری پالیسی کو یہ کنٹینیو کریں، ہم نے بھی پچھلی گورنمنٹ کے بہت سارے منصوبوں کو کمپلیٹ کیا، ان کی بہت اچھی پالیسیز کو اڈاپٹ رکھا اور ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور کمپلیٹ کیا، اور اسی نظریے سے آگے بھی جانا ہے اور انشاءاللہ جائیں گے۔ جہاں صاحب آپ کی اسمبلی کی اسپیچ میں آپ نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ مجھے 2 ووٹ ملیں بھی تب بھی استعفیٰ نہیں دوں گا، ایسے کون سے محرکات اور عوامل تھے کہ آپ استعفیٰ دے کے پھر چلے گئے، اس کی کلیریفیکیشن بھی نہیں ہے آپ؟ جی دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً 1-1.5 مہینے کا عرصہ یہ بڑا سلسلہ جب چلا، اور اس سارے سلسلے میں سارے دوست تھے، اور بار بار ہماری یہی کوشش رہی کہ ہم اپنے ناراض دوستوں کو منائیں، کسی طریقے سے سسٹم کو پھر سے ٹریک پہ لائیں، لیکن یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید کئی چیزیں جب حل ہونے کی طرف جاتی تھیں تو پھر اپوزیشن اور باقیوں کی طرف سے ایک ماحول ایسا کریٹ ہوتا تھا، اور پھر اینڈ میں ایک سچویشن ایسی بن رہی تھی کہ جہاں ان نیسیسری پارٹی کے بہت سارے دوستوں کو اور لوگوں کو ان نیسیسری رسک پہ رکھنا مجھے مناسب بھی نہیں لگا، دوستوں کو بھی کچھ نہیں لگا، کہ یہ نہ ہو کہ اینڈ میں ووٹنگ کا سلسلہ جب ہو اور کولیشن کے ممبران اور ہم لوگ ایک گروپ بالکل سائڈ پہ ہوں اور اپوزیشن اس کا ایک حصہ بنے، اور اس اپوزیشن میں وہ اپنا ووٹ شو کر کے پھر اس سپورٹ میں آگے جائے، اس میں کامیابی ہو نہ ہو، پھر اس کامیابی کے بعد پھر یقینی طور پہ جب اس لیول تک آپ اختلافات میں چلے جاتے ہیں، پھر پارٹی ڈسپلن کے تحت چیزیں شاید ہماری طرف جاتی ہیں اگینسٹ یا ان کی طرف جاتی ہیں، تو ہم نے ایک بڑے چیزوں کو آگے دیکھتے ہوئے سوچا، اور پھر اور میرے خیال سے یہ کوئی ایسی سیٹ نہیں، میں نے ہمیشہ اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے کہ یہ سیٹ جو وزیر اعلیٰ کی ہے یہ کسی کی ہے نہیں، آج ادھر ہے کل کسی اور کے پاس ہے، اس سے پہلے کسی اور کے پاس تھی، تو ان سارے محرکات کو دیکھتے ہوئے، چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے محسوس کیا کہ اگر واقعی -1 کا فارمولہ بلوچستان کے مفاد میں جاتا ہے، پارٹی کے مفاد میں جاتا ہے، اس گورنمنٹ کے مفاد میں جاتا ہے، تو جام کمال کوئی ایسا ضدیات بھی نہیں ہے کہ اس پہ ذرا ڈٹا رہے کہ نہیں جی آخر تک بھلے جو بھی نقصان ہو جائے میں یہیں رہوں گا۔ فائنلی کنسنسس پہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ٹھیک ہے، جمہوری عمل ہے، اس جمہوری سسٹم کا حصہ ہیں، اور ایک ہم ایسا اسٹیپ لیتے ہیں تاکہ چیزیں آگے بہتر پازیٹیوٹی کی طرف آگے جائیں۔ سر یہ کنسنسس جو ہے زوراوروں نے ڈیسائیڈ کروایا یا پولیٹیکل فورسز تھی؟ دیکھیں یہ ایک ماحول بنا ایسا، ایک ماحول بنا جس کے نتیجے میں کولیشن کے ممبران بھی تھے، پاکستان تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی، BAP، ہزارہ ڈیموکریٹک، JWP، ہم سارے جب ساتھ بیٹھے اور ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھا، اور پھر بہت سارے ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں جس میں MNAs ہیں، سینیٹرز بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جہاں آپ نے میڈیا ان کا بھی کور کیا ہوگا، ہمارا بھی کیا ہوگا، تو ایک مسلسل ایک ہلچل اور ایک کام ہو رہا تھا جس میں وہ گروپ بھی اسی انداز میں تھے اور ہمارے لوگ بھی تھے، اور ایک دوسرے کے پاس اسی حوالے سے جا رہے تھے کہ چیزوں کو ہم سیٹل کرنے کی طرف جائیں، لیکن وہ بندشیں میرے خیال وہ ہٹ نہیں پا رہی تھی، جب بند بھی نہیں پا رہی تھی، تو اس حوالے سے پھر ایک اوور آل پولیٹیکل کنسنسس ان دا بیٹر فیتھ فار دا سسٹم اور اس سارے بلوچستان کے جمہوری عمل اور پارٹیز کے حوالے سے تھا، لیکن میں یہ ضرور اینڈ میں بات کہوں گا کہ یہ جو ساری قربانی یا یہ سارا سٹیپ، یہ ساری چیزیں جو دی گئیں اس میں سب نے دی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کولیشن کے بہت سارے پوری پارٹیز نے سب نے دی، جب ایک کیبنٹ ختم ہوتی ہے تو سارے لوگ ہٹ جاتے ہیں، لیکن ہم یہ محسوس کرنا چاہیں گے کہ یہ جو سارا سٹیپ لیا گیا، یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہم نے لیا، اس کا رزلٹ اچھا ہے، بلوچستان کے فائدے میں آئے، چیزوں کو سموتھلی آگے جانے کی طرف جائے، یہ نہ ہو کہ ہم کچھ عرصے میں اسی پولیٹیکل کرائسس کا شکار رہیں جس کی وجہ سے بلوچستان میں ترقی کا عمل سلو ہو جائے، جس میں بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ کا عمل سلو ہو جائے، چیزیں گورننس کی طرف نہ جائیں۔ میری آپ کی توسل سے یقینی طور پہ قدوس بی زنجو صاحب اور ان کی کیبنٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہم اس فیز سے ابھی نکلنا ہمیں چاہیے،
हम मज़ीद वेट नहीं कर सकते। अभी भी आप देखें, जब हमारा बजट पास हुआ था, बजट पास होने से आज तक के दिन में अपोजिशन ने एक बहुत बड़ा धरना बजट में दिया, फिर उसके बाद थानों में धरना दिया, फिर उसके बाद एक दो और एजिटेशंस हुए, फिर ये सारा अमल आगे आया। कि 4-5 महीने के अरसे ने बलूचिस्तान के डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों को और जो डिपार्टमेंटल कारकर्दगी ये 4-5 महीने से तकरीबन मफलूज हो के रह गई है। तो अभी भी अगर हम इसी का शिकार रहेंगे तो ये आपका दिसंबर तकरीबन पहुंच गया, फिर शायद हम इस पूरे बजट को ज़ाया ना कर दें। हम डेवलपमेंट से फोकस हट के, सर्विस से फोकस हट के, हम पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ साथ पता चला कि परफॉर्मेंस की तरफ भी एक क्राइसिस में जाएंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट होगी, हमने ये 3.5 साल इस गवर्नमेंट को चलाया है, गवर्नेंस को इसकी बेहतर हम समझते हैं, हम अपना इनपुट देते रहेंगे। तो अभी हमें पब्लिक सर्विस और पब्लिक डिलीवरी की तरफ ज़्यादा फोकस देना चाहिए। सर ज़हूर बुलैदी साहब ट्वीट कर रहे हैं, मुसलसल ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके दौर के जो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मतलब आवाम के मुफाद में नहीं, उस पर हम कट लगाएंगे। उन्होंने जिक्र भी किया स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस या कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, इस हवाले से। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि आप बेशक बलूचिस्तान के मफाद में हर चीज़ पे कट लगाएं। जाम कमाल से वाबस्ता है, बिल्कुल कट लगाएं। मेरी ज़ाती कोई चीज़ है जिससे मुझे फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल कट लगाएं। हुकूमत बलूचिस्तान ने इसी बजट को पेश किया, और मेरे दोस्त हैं ज़हूर बुलैदी साहब, इसी बजट को उन्होंने पेश किया एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, और उन सारी चीज़ों के हवाले से अपनी तकरीर में उन्होंने इन सब चीज़ों की सपोर्ट। देखिए, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगा, मैंने ट्वीट भी किया था कि हुकूमत जो है वो एक सब्जेक्ट को लेके कभी आगे नहीं चलती। कि मैं आज ये फैसला करूँ कि जी जब तक बलूचिस्तान में हर जगह पानी नहीं होगा तो हम रोड नहीं बनाएंगे, जब तक रोड कंप्लीट नहीं होंगे तो हम अस्पताल नहीं बनाएंगे, जब तक अस्पताल पूरे बलूचिस्तान में नहीं बन जाते तो उस वक्त हम किसी और सेक्टर में काम नहीं करेंगे। हुकूमतें हर सेक्टर में काम करती हैं। नौजवानों की ज़रूरत है, गरीबों की ज़रूरत है, तालीम याफ्ता लोगों की ज़रूरत है, कहीं यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। खेल और खेल से तो आप अपने आप को कहीं बाहर नहीं रख सकते। नौजवानों के लिए बलूचिस्तान में है क्या? तालीम के मौक़े उनको हम देते हैं, कुछ उनके लिए एक्टिविटीज़ की फैसिलिटीज़ रखते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं, पानी की स्कीम। हाँ, एक बात है, अगर हमारी हुकूमत ने अपने पॉलिसी में या PSDP में तालीम को फोकस ना रखा होता, सेहत के लिए पैसे ना रखे होते, पानी के लिए पैसे ना रखे होते, डेवलपमेंट के लिए ना रखे होते, ज़िले जो हमारे लोकल बॉडीज़ का सेटअप है उसके एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए पैसे ना रखे होते, और सिर्फ सेहत के और सिर्फ जो खेल के लिए रखे होते, बिल्कुल आप सारे काट देते। लेकिन हमने एक बड़ा प्रोपोर्शनल बजट बनाया जिसमें हर सेक्टर में हमने चीज़ें रखी हैं। और उन्होंने 3 ज़िलों का जो बात की, तो देखिए आवारान में क्या है, आप आवारान जाके देख के आ जाएँ, वाशरूम देख के आ जाएँ। यस, वहाँ पानी के काम दिए, हमने डैम्स बनाए हैं, हम मज़ीद डैम्स बना रहे हैं, वाटर प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, सोलर वाटर सप्लाई स्कीम्स बन रही हैं, स्कूलों के प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हेल्थ की बात कहेगी, मैं ख्याल बलूचिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा हेल्थ का बजट नहीं होगा जो ये पिछले साल में बना है, जो पास हमने किया है। तो मैं कहूँगा कि हम सिर्फ सियासत के हवाले से चीज़ों को ना देखें, हम इस टीम का हिस्सा रहें, और आप हमारी टीम में थे और बाकी पूरी कैबिनेट हमारे साथ थी। तो हम सब ने मिलकर बजट पेश किया था, जिस पे हमने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ही के सामने पाकिस्तान के लोगों के सामने की, और इस बजट को बड़ा सराहा लोगों ने, और इस पर हमने डिबेट्स की, बल्कि ज़हूर बुलैदी साहब ने मुझसे ज़्यादा डिबेट्स इसमें की हैं। तो इंशाअल्लाह बिल्कुल कोई चीज़ जो बलूचिस्तान के मफाद में नहीं है, बिल्कुल आप रैशनलाइजेशन करें, उसको पब्लिक के सामने रखें और उसको बिल्कुल काट दें। जहाँ तक इनफरादियत चीज़ों के हवाले से बात है, बिल्कुल हटा देना चाहिए, लेकिन कोई चीज़ जो बलूचिस्तान के मफाद में है उसको आप कायम रखें। गवर्नमेंट्स जो है अपने प्रोजेक्ट्स 1-2 साल के लिए नहीं बनाती, 5, 6, 7 साल मंसूबा होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लीशन की तरफ जाते हैं, और फिर ये लोगों को फ़ायदा होता है। जनाब साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत के हवाले से आज आपका क्या स्टांस है? जी, मैं तो मेरा पहला वाला स्टांस ही है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक ट्वीट के हवाले से चीज़ों को मुंसलिक किया गया, जिसमें मैंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी। फिर ये जब सारा इलेक्शन का नई गवर्नमेंट का सिलसिला आगे आया, उसमें केयर टेकर के हवाले से भी चीज़ें आई, और मैंने पहले भी यही कहा था कि हर चीज़ एक तरीक़ेकार से चलता है, और उस तरीक़ेकार से अगर जाम कमाल पार्टी का सदर अगर नहीं हो सकता, उसका बड़ा एक वाज़ेह तरीक़ेकार है। अगर मैंने अपना रिटन में रिजिग्नेशन दिया होता, इलेक्शन कमीशन उसको एक्सेप्ट करता था, आज पार्टी का प्रेसिडेंट ना होता, और अगर हमारी काउंसिल पूरी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की काउंसिल आती और वो किसी और को नामजद करती, उस पर वोटिंग होती, या हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो सबसे बड़ी एक अहमियत रखती है, या उसमें डिसीजन होता। खैर वो चीज़ें नहीं हुई। अब चूँकि टाइम भी तकरीबन पूरा हो चुका है, और मेरा ख्याल अब हमें फोकस इस बात पे करना है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी में हम इलेक्शन कराएं, और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का नुमाइंदा होगा, जो
ये समझता है कि वो पार्टी के लिए काम करना चाहता है, सदर बनना चाहता है, जनरल सेक्रेटरी बनना चाहता है, सामने आना चाहिए। और जिसको पब्लिक सपोर्ट करे, जिसको बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबरान सपोर्ट करें, बिल्कुल आना चाहिए। साहब सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर है, अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग इस बात पे खुश नहीं है कि जाम कमाल को एज अ पार्टी प्रेसिडेंट रहना चाहिए, तो मैं अपनी जिम्मेदारियाँ रिलिंक्विश करने के लिए तैयार हूँ और मैं रिलिंक्विश करके छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। उसी सिलसिले में मैं जब वापस आया तो यही बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सारे मेंबरान दोस्त मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि जी ये जो आपने इज़हार ख्याल किया है, मेहरबानी करके इसको आप बिल्कुल हटाएँ और हम चाहते हैं कि आप कंटिन्यूटी रखें। और देखिए सीट मेरे लिए चाहे पार्टी की प्रेसिडेंटशिप की हो या सीएमशिप की थी, ये जिम्मेदारियां हैं। जब तक हम इन जिम्मेदारियों को ठीक तरह से निभाएंगे, हमें निभानी चाहिए जब तक हैं, और जब तक इन जिम्मेदारियों को हम ऐसे अंदाज से नहीं करेंगे, इन सीटों पे किसी और को भी आना चाहिए, लोगों को आना चाहिए। और यही मैं बड़ा देखिए बिलीवर हूँ बेंचमार्क पे। बहुत सारे लोगों ने कहा जी अभी जो नई हुकूमत आई क्या करेगी, मैंने कहा जी अच्छी बात है, नई हुकूमत मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि ये गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा अच्छा काम करे ताकि आने वाला उससे ज़्यादा अच्छा काम करे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई गवर्नमेंट फेल हो, लेकिन एक तवाज़ुन ज़रूर बरकरार होना चाहिए कि हमारी हुकूमत ने क्या काम किया, अगली हुकूमत क्या काम करेगी, और आने वाली जो हुकूमत होगी बलूचिस्तान की वो काम क्या करेगी, ताकि बलूचिस्तान के लोग आने वाले कुछ इलेक्शंस में इस बात पे अपनी एक राय कायम कर सकें कि जी हम महसूस करते हैं कि ये शख्स इसलिए बेहतर था, ये शख्स इसलिए बेहतर था, और ये शख्स और इनकी काबीना इसलिए बेहतर। अच्छा सर, चूँकि हमारी तो ये कोशिश होगी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, अभी चूँकि मैं वापस आया हूँ, हम एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मीटिंग हम बुलाएँ। इसमें बहुत सारे हमारे मेंबरान हैं, हमारे बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, और साथ साथ में पार्टी के बहुत सारे वर्कर्स हैं, मेंबरान हैं, ओहदेदार हैं। ये सब बैठ के हम एक तरीक़ेकार आगे के लिए बनाएं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को किस तरह आगे ले जाना है, किन चीज़ों के हवाले से ले जाना है, और उसके आने वाले इंट्रा पार्टी है या फिर जो एक जनरल पार्टी इलेक्शंस जो इलेक्शन कमीशन ने जो एक डेट फिक्स की हुई है कि हर पार्टी ने अपने कराने, उस हवाले से क्या तरीक़ेकार बनाने। तो इंशाल्लाह इधर आए हैं, सारे दोस्तों को इंशाल्लाह बुलाएंगे, सबके साथ बैठेंगे भी और इसका एक तरीक़ेकार। कल असेंबली जाएंगे सर इजलास में? जी असेंबली क्यों नहीं जाएंगे, असेंबली से तो इस्तीफा थोड़ी नहीं है। सर आपका रोल क्या होगा, अपोजिशन बेंचेस, गवर्नमेंट बेंचेस? आज़ाद बैठेंगे सर। हम हुकूमत का हिस्सा हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी इधर है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होगा कि हम दोस्तों के साथ गवर्नमेंट के ओवरऑल फंक्शन के हवाले से अपना मशवरा भी देंगे, कभी अपनी तनकीद भी देंगे, और तनकीद बराए एक अच्छे मकसद के लिए देंगे। हम देखें कभी मेरी कोई नीयत ऐसी नहीं है और हमारे दोस्तों की भी कोई नीयत नहीं है कि अननेसेसरी हम एक सेंसेशन क्रिएट करें। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान के कोलिशन के सारे दोस्त, हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हमारी कोशिश होगी कि हम अपने असेंबली के अंदर पॉलिसी मेकिंग में चीज़ों को अच्छी तरीके से आगे की तरफ ले जाएँ और एक अपना एक पॉजिटिव। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।